am Priya Gupta, your host and host for today. A very warm good morning to each one of you. And it's indeed a pleasure, privilege, honor, and delight to extend a warm welcome to our chief guest with a big round of applause. Sir, we are delighted to have you with us and to share the journey of entrepreneurs in the last 2 years. This location was inaugurated by our Honorable Chief Minister, sir, in the presence of our erstwhile Additional Chief Secretary, sir, and Director Industries and Chief Secretary erstwhile, as well as the erstwhile Industry Minister, Honorable Industry Minister, sir. This space was earlier not being used, and the visionary leadership of our erstwhile ACS, sir, actually focused on transforming this location into a full-fledged B-Hub, which is a co-working, co-learning space aimed at transforming the entire startup ecosystem of Bihar. Today is an auspicious day, World Entrepreneurs Day, and we are blessed to have with us a lot of young and bright startups and entrepreneurs of Bihar. Many of them have started leaving their mark in the annals of history by their excellent performance. Some of them have been raising funds, A level, B level, C level, as well as some of them have also started proving their worth at Shark Tank India. Some of them have also started raising funds from abroad as well. One of our startups raised fund from Japan as well. So I take this opportunity to congratulate all the entrepreneurs here and also to make sure that the dreamers are the ones who are dreaming about their ideas. But here is a team of people who are having specialized knowledge, skills and competencies in ensuring that they are converting their ideas into reality. They have the focus on agility in execution. And I'm also delighted to share, sir, that the Startup Bihar page of LinkedIn has now crossed around 7,000 followers across the country. And I'm very sure that very soon it will be crossing 10,000 as well. The work done by the startups here in Bihar has now started attracting investors, not just from India, but also from abroad. And more angel investors, venture capitalists have started showing their interest. I'm also delighted to share, sir, that TiE USA, last couple of weeks back, it started TiE Patna chapter. And this was the 27th chapter in India and 62nd across the world under the leadership of Sri Kumod Kumarji, who's the founder president of TiE Patna chapter. We are also delighted to share that a lot of young startups have been raising funds in India and have made their presence at Shark Tank, and their valuation is reaching from 10 crores to 50 crores. Some of them have crossed even 100 crores. I wish all of you great success in all your startup endeavors, and CIMP, BIF, and the entire team of startup unit, the startup support unit at Department of Industries, is committed to provide a conducive, enabling, facilitating environment to make sure we give you everything, not just co-working space, market linkages, consulting, advisory, business connect, as well as export related connects. And not just that, we are willing to commit everything under the sky which it takes to make you bigger, brighter, better and excellent. With these words, I once again welcome our chief guest with a big round of applause from our side. सर्वप्रथम मुझे काफ़ी हर्ष की अनुभूति हुई इस तरह के कार्यक्रम में आपने आज मुझे आमंत्रित किया है। और हालांकि उद्योग विभाग में मेरा टेन्योर मात्र भी 1 माह का ही, और मैं भी चीज़ों को समझ भी रहा हूँ। जहाँ तक मेरी प्रिलिमिनरी जानकारी 2017 में बेसिकली स्टार्टअप पे मूल रूप से बिहार राज्य द्वारा जो काम शुरू हुआ, और अब कहीं ना कहीं जाकर धीरे धीरे हम लोग अब इस्टेब्लिश हुए। तो मैं सबसे पहले तो CIMP को बधाई देता हूँ कि एक बहुत अच्छा आप लोगों ने एनवायरनमेंट यहाँ पे स्पेस क्रिएट किया है, जो ना सिर्फ अट्रैक्टिव है लेकिन पॉजिटिविटी और मोटिवेशन से भरा हुआ है। तो मेरा जब आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे विभाग को भी इसकी काफ़ी ज़्यादा जरूरत है, और सरकारी कार्यालयों की जो धारणा है लोगों के मन में, उसको हम लोगों ने टूटते हुए देखा है विगत 3-4 वर्षों में। मुझे भी 4 जिलों में जिलाधिकारी रहने का अनुभव प्राप्त है, और
मैंने खुद इस बात को फील किया है कि लास्ट 3-4 वर्षों में जो अमूलचूल परिवर्तन जो ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस डिपार्टमेंट ने किए हैं उसका कहीं ना कहीं जो असर है अब दिखने लगा। निश्चित रूप से कोई भी इन्वायरमेंट एक दिन में नहीं बनता, मतलब इट टेक्स टाइम। आज के दिन में जो भी सफल राज्य हैं इंडस्ट्री में, एंटरप्रेन्योरशिप, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग वे बैक, बहुत पहले से इस पर मेहनत हुई है। तो हम लोग आज जाके देख रहे हैं कि गुजरात बहुत आगे है, राजस्थान आगे है, तमिलनाडु आगे है, महाराष्ट्र आगे है। हम लोग इस रेस में कहीं पीछे थे, बट वी हैव कॉट। हम लोग धीरे धीरे अब इस रेस का हिस्सा बन रहे हैं। जो लेट एंट्रेंट होता है उनको एक एडवांटेज होता है, लास्ट मोर एडवांटेज जिसको हम लोग बोलते हैं, कि वी डोंट रिपीट द मिस्टेक्स व्हिच हैव बीन डन बाय अदर्स। जिन लोगों ने प्रयास करके जिस चीज में असफल रहे, हमारे पास पहले से ही वो ज्ञान प्राप्त है कि इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे किया जाए। स्टार्टअप एक ऐसा चीज है जिसमें कि ये सारा रियलाइजेशन आपको प्राप्त होता है। हम लोग चाहेंगे कि जिन चीजों में हमको जानकारी प्राप्त होगी उन चीजों से उबर कर नई चीजों में जो सफल है उसको हम लोग अडॉप्ट करें, साथ ही साथ नई चीजें भी सोचें। इसीलिए स्टार्टअप की बात स्टार्टअप जैसी, हम प्रयास करेंगे तब तो जानेंगे कि ये किसी चीज को करने का सही तरीका नहीं, इसको और बेटर तरीके से किया जा सकता है। हम लोग जब कोई पीएचडी का थीसिस वगैरह लिखते हैं तो उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। उसमें होता है कि हम कोई एक चीज या किसी एक चीज को लेके, हाइपोथेसिस को लेकर चलते हैं कि ये चीज ऐसे हो सकती है अगर इसको ऐसे किया जाए। हो सकता है कि 3 साल की रिसर्च के बाद आपको पता चले नहीं ये तो एकदम गलत है, इसको तो ऐसे नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि रिसर्च ही नहीं हुई क्योंकि उसका फल नहीं निकला। फल नहीं निकलना भी अपने आप में एक रिसर्च का वो है। तो हम जानते हैं कि अच्छा इसको इस तरीके से तो कम से कम नहीं करना, या इसको अगर करेंगे तो इसको और थोड़ा मॉडिफिकेशन की आवश्यकता हो। चीजें बहुत तेजी से चारों तरफ बदल रही हैं। हम लोग जो सोचते हैं, जिस स्पीड से हम लोग बढ़ते हैं, उससे भी कई दुगनी तिगनी स्पीड से उस क्षेत्र में जिसमें हम लोग काम करना चाहते हैं काम हो रहा है। चारों तरफ हो रहा है, देश के अंदर हो रहा है, राज्य के अंदर हो रहा है, देश के बाहर हो रहा है। हम लोग को सजग रहने की आवश्यकता होती है। कई बार कंप्लेसेंसी फैक्टर काम करता है, हम लोग को लगता है कि हमने वो अचीव कर लिया जो हमको अचीव करना था, लेकिन नहीं। अभी मारवाड़ी वेंचर्स, मारवाड़ी कैटलिस्ट का क्या अर्थ होता है बताइए कोई? केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक वर्ड है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, हाँ मतलब चीजें हो रही होती हैं, अगर कैटलिस्ट आ जाता है तो चीजें और दुगनी तिगनी स्पीड से करने लगती। किसी भी स्टार्टअप को करने के लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले तो है कि आपके पास आइडिया होना चाहिए। हम लोग बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, हमारे यहाँ स्टार्टअप सेल, उसमें इंटरव्यू लेते हैं, जानना चाहते हैं कि लोग, जैसे शार्क टैंक बहुत सारे लोग गए हुए हैं ना। शार्क टैंक जैसा कॉन्सेप्ट बहुत पहले नहीं था, अभी हाल फिलहाल काफी प्रचलित हुआ है, लेकिन इस तरह की चीजें होती रही। डोनाल्ड ट्रंप भी शार्क टैंक जैसा कुछ कुछ करते थे। आज शार्क टैंक जैसा चीज हमारे विभाग में होने लगा। हम लोग आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अप्लाई करिए, आइडिया लाइए। कई लोगों का आइडिया के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी रहता है, उनको हम लोग तुरंत हैंड होल्ड करते हैं, जो विभाग की तरफ से दे सकते हैं सपोर्ट देते हैं। बी हब भी उसमें से वन ऑफ दी सपोर्ट है जो हम लोग देते हैं। कई लोगों के पास आइडिया रहता है, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्लान नहीं रहता। तो आईआईटी जैसे बड़े बड़े संस्थानों के साथ, आईएम्स के साथ, सीआईएमपी के साथ हम लोगों ने टाई अप किया, जिसमें एक तरीके से उनका प्रोबेशन चलता है। दे गिव देयर आइडिया, वहाँ के एक्सपर्ट जो लोग होते हैं उनको बताते हैं कि इसको कैसे कर सकते हो आप, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं किसके साथ, एंड देन वी अगेन अलाउ देम टू कम बैक अगेन, रीशेयर देयर आइडिया, वो क्या सीखे, कैसे अब नए तरीके से करेंगे, और अगर हम लोग पसंद आता है तो हम लोग उसमें भी इसको सपोर्ट करते हैं। एक तीसरा कैटेगरी होता है जिसमें आइडिया भी अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंट उसको करने के लिए बहुत बड़े स्केल के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो वैसे में आपके मारवाड़ी कैटलिस्ट, वेंचर फंड्स, आपके फंड ऑफ फंड्स, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो पहला चीज है कि आइडिया हो, दूसरा चीज है कि फंडिंग। और फंडिंग कोई भी व्यक्ति ना, तो आप भी अगर इन्वेस्टर हो, उनकी जगह हो, तो क्या किसी हारने वाले घोड़े पे कोई पैसा लगाता है? नहीं लगाता। लेकिन स्टार्टअप में ऐसा है, हम लोग मान के चलते हैं कि हो सकता है कि फेल भी कर जाए, लेकिन फिर भी आपके आइडिया पे हम लोग ट्रस्ट करते हुए बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, और बहुत बार सक्सेसफुल होते हैं, कई बार नहीं भी होते।
तो हम लोग को प्रयासरत रहना है कि एक आइडिया अगर फेल हो गया डजंट मीन कि हम दूसरा आइडिया नहीं ला सकते। हमारा एक आइडिया सफल हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वहीं रुक जाना है, कुछ और आप नहीं कर सकते। किसी एक क्षेत्र में आप काम कर रहे हो डजंट मीन कि दूसरे क्षेत्र में आप काम नहीं कर सकते। उससे रिलेटेड क्षेत्र में काम करने पे सफलता का चांस बढ़ जाता है क्योंकि आपको थोड़ा डोमेन नॉलेज हो गया है, लेकिन डजंट मीन कि आप पैरेलली बहुत सारा चीज नहीं करते। रिलायंस जैसी इंडस्ट्री है वो क्या नहीं करती है ना, एवरीथिंग। धीरे धीरे पतंजलि भी किस तरीके टूथब्रश भी बना रही है, टूथपेस्ट भी बन रहा है ना, वो जितना भी आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो भी बनाती है। तो डाइवर्सिफिकेशन विल हैपन धीरे धीरे, लेकिन डे वन से डाइवर्सिफिकेशन में अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत सारे नाव पे पैर रखने पे दिक्कत तो होती है। हो सकता है आप एक्सपर्ट हो, लेकिन जनरली ये दिक्कत आती है। तो हम लोग को अपने आइडियाज को मरने नहीं देना। आइडियाज एक बार सक्सेसफुल हो जाए तो उसको कहीं स्टैग्नेट नहीं रखना। स्केल अप करने की बात होती है, स्केलेबिलिटी। किसी चीज का आज अगर स्केल 100 का है तो उसको 1000 कैसे लेके जाए, लेकिन उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। मतलब जस्ट ड्रीम हो, आपके सपने हो, लेकिन उसको वहां तक सपने को साकार करने का अगर प्रयास किसी में तो वो चीज नहीं हो सकती। तो आप लोग लकी हैं कि आपको पटना जैसे प्राइम लोकेशन, तो जैसे सपोज की वन ऑफ द प्राइम लोकेशन ऑफिस स्पेस फाइनली आपका सेटअप हो। उसके पहले एक स्पेस यहाँ पर वीहब के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। कुछ अन्य जिलों में भी हम लोगों ने इसी को रेप्लिकेट करने का प्रयास किया है। हम लोग की इच्छा है कि सभी जिलों में इस तरह का क्रिया हो, छोटा ही से, जहाँ पर वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता है। मुझे राणा जी बता रहे थे कि आप लोग यहाँ पर हैंड होल्डिंग के लिए कुछ सेशंस भी कराते हैं, जो एक्सपर्ट्स आते हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है। आज जैसे आज के दिन में जो आपके पैनलिस्ट उनके साथ आपका विचारों का आदान प्रदान होगा। कई दिमाग में शंकाएं रहती हैं, डाउट्स रहते हैं, उसको दूर करने का अवसर मिले। इस तरह के अवसर जब भी प्राप्त हो, क्योंकि एक सफल व्यक्ति से जब आप बात करते हैं तो उसमें सफलता के पीछे जो मेहनत होती है वो कोई नहीं देखता है कि उसके पीछे बहुत सारे पिटफॉल्स रहे होंगे। कई उन्होंने स्टार्टअप शुरू करके फेल हुए होंगे, तब आज हैं जहाँ पर। तो उनसे जो आप सीखेंगे वो कोई और आपको नहीं सिखाएगा। मतलब इट्स इजी टू रीड इन बुक्स कि चीजों को कैसे किया जा सकता है, लेकिन टू हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ इज अ डिफरेंट थिंग। आप उनसे सीखिए जिन्होंने ये सब चीज स्टार्ट करके, स्टार्टअप प्रारंभ करके और कैसे सेटबैक लेते हुए पुनः फिर से खड़े हुए और पुनः इसको आगे बढ़ने का प्रयास किया। तो आज के पैनलिस्ट, मुझे मेरी अपेक्षा है जो आज के इस सेशन का मुख्य उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी। आप लोगों को कुछ ये लोग भी लेके जाएंगे और यहाँ से आप लोग इसको कुछ लेके जाएंगे। बिकॉज जब कोई बताता है तो जो फीडबैक मिलता है उससे उस आदमी को भी अपने नॉलेज को एनहांस करने में, एक्सपीरियंस को एनहांस करने में मदद मिलती है। तो इस सेशन का फुल यूटिलाइजेशन करें और आज के इस दिवस की आप सबों को, जो स्टार्टअप आप लोगों ने शुरू किया है, स्टार्टअप टीम का हिस्सा है, आप सबों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मेरी विभाग की ओर से जिस भी प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता होगी हम लोग निश्चित रूप से इसको करने के लिए तैयार हैं। रैंप नाम की एक योजना भारत सरकार की है जिसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि जो एमएसएमईज, आप लोगों में बहुत सारे आने वाले दिनों में एमएसएमईज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बने, तो उसमें किस प्रकार से उनको हम लोग हैंड होल्ड कर सकते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है जिसकी पूर्ति हम लोग कर सकते हैं विभाग की ओर से। तो मैं राणा जी से अनुरोध करूंगा कि जो भी इसका निचोड़ हो प्लीज लेट अस नो एंड इन एनी मैनर, अगर हम लोग किसी प्रकार से आपकी मदद कर सकते हैं निश्चित रूप से उन लोगों को करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और इस सेशन की पूरी शुभकामनाएं कि सफल सेशन में जिस उद्देश्य के साथ आज यहाँ पर परिणत।